राजे जनमेजे ने वेद व्यास दे अगे सवाल किया कि साडे वाडे वडेरे पांडव पंजे भरा बड़े सियाणे सन। कृष्ण भगवान उन्हां दे पास रहिंदा सी, ਉਹ उन्हां दी हर तरह नाल मदद करदा सी। लेकिन उन्हां नूं मन ने किस तरह कुराहे पाया, भरा भरा ही किस तरह ਉਹ लड़े, किस तरह मुल्क का नुकसान किया, वो मन का कहा उन्होंने क्यों मन्निया। वेद व्यास राजे जनमेजे नूं कहण लगे कि मन बड़ा जबरदस्त है, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसने पटका के संसार दे विच मारे, बड़े बड़े लोकां नूं कुराहे पा दिता, मन बड़ा तकड़ा है। लेकिन जनमेजा कहण लग्या कि मैं नहीं मनदागा इस गल नूं, मैं इतफाक नहीं करदागा। तो वेद व्यास कहण लग्या मैं तेनू दस दिना है कि मन तेरे नाल की करूगा। अज तो कुछ दिनां बाद एक सुदागर आएगा, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੀ ਜਾਂ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਚੇ ਹੈ, ਮਸਟੰਡੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੰਡ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ कहानी नहीं बनेगी। अगर खरीद लिया तो मैं पूर्व की दशा नहीं जाऊंगा, अगर पूर्व दे विच चलिया भी गया उस औरत नूं घरे नहीं लियाऊंगा, अगर घरे भी ले आऊंगा तो मैं उस दे नाल शादी नहीं करूंगा, अगर शादी भी कर ली तो ਉਹਦੇ आखे अच्छे आदमियों नूं भोजन नहीं करूंगा, अगर कर भी लऊंगा तो मैं उन्हां नूं मारूंगा नहीं। मालिक दी मौज। कुछ दिनों बाद सुदागर आया। ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਬੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਬਤ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਘੋੜਾ ਜਿਉਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾਗਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਦੱਸ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਆਖਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਚੇ ਹੈ, ਮਸਟੰਡੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੈ।
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਨਮੇਜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮੱਤੀ ਬਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ, 3 ਕਰ ਜਗ 18 ਕਾਏ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਦਾ ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, 18 ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਵੇ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, एक ही कारण पापी पिया। प्यारे बच्चों और सभी सत्संगी भाई बहन, जो उस कहानी अभी बाबा जी ने कही, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी की इस कहानी के अनुसार राजा जन्मेजय ने वेद व्यास से सवाल किया कि हमारे पूर्वज पांडव बहुत समझदार थे, कृष्ण भगवान उनके पास रहते थे और हर तरह की मदद करते थे, लेकिन मन ने कैसे उन सबको गलत रास्ते पर डाल दिया, भाई भाई को आपस में लड़ा दिया और वो मार दिया, देश को कितना नुकसान हुआ। उन्होंने मन का कहा क्यों नहीं माना। वेद व्यास जी ने कहा कि राजा जन्मेजय, मन बहुत जबरदस्त है, इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गलत रास्ते पर डाल दिया, लेकिन राजा नहीं माना। वो कहता जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं इस बात को नहीं मानता। वेद व्यास जी ने कहा मैं आपको बता देता हूं कि आपके साथ क्या होगा। आज के कुछ दिन बाद एक सौदागर आएगा, उसके पास घोड़े होंगे, उनमें से एक घोड़ा बहुत अच्छा होगा जो आप खरीद लोगे। आप उस पर चढ़कर पूर्व की तरफ जाओगे, आपको एक औरत मिलेगी जिसे आप महल में लेकर आओगे और शादी करोगे। यह औरत आपसे कहेगी कि शादी की खुशी में खाना खिलाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। आप ऋषियों मुनियों को खाना खिलाओगे, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, शक्ल नहीं देखी होगी, वे खाना खा के खुश हो जाएंगे और हंसेंगे। वे औरत कहेगी कि ये देखो मुझे देखकर हंस रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। आप क्रोध में आके कुछ नहीं सोचोगे और मन के कहने में आके सबको मार दोगे, सबका कत्ल कर दोगे। उसका आपको दंड मिलेगा और उस दंड में आपको कुष्ठ रोग होगा, जैसे कोढ़ बोलते हैं, वो होगा। राजा जन्मेजय, हमने आपको सब कुछ बता दिया, अगर आपसे कोई उपाय होता है तो आप कर लो। अब राजा जन्मेजय ने सोचा कि मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा तो आगे कहानी ही नहीं चलेगी, बात ही नहीं बनेगी। अगर मैं खरीद भी लिया तो मैं पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा, अगर चला भी गया तो मैं उस औरत को घर में नहीं लाऊंगा, अगर घर ले भी आया तो शादी नहीं करूंगा, और अगर शादी कर भी ली तो ऋषियों मुनियों को भोजन नहीं करूंगा, अगर खिलाया तो मैं उन्हें मारूंगा नहीं। ये मन के बहकावे थे, उसने ऐसा सोचा। लेकिन माले की मौज हुई। कुछ दिनों बाद सौदागर आया। राजा के जो अफसर थे, जो उसका राजकाल संभालते थे, उन्होंने कहा कि राजा ये घोड़ा बहुत अच्छा है, अगर आपके तबेले में होगा तो आपकी बहुत इज्जत बढ़ेगी, आप सवारी मत करना, कम से कम लोग देख के खुश होंगे कि राजा के पास बहुत, देखो कितना अच्छा घोड़ा है। राजा ने उनके कहने पे घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद जिन्होंने घोड़े को ट्रेन किया था, उन्होंने कहा महाराज जी ये चढ़ने के काबिल, आपको चढ़ना चाहिए। राजा घोड़े पे चढ़ा और घोड़ा धक्के से अपने आप ही, उसने लगाम वगैरह नहीं मानी, उसको राजा को पूर्व दिशा की तरफ ले गया। आगे एक औरत रो रही थी। राजा ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। वह बोली तूफान आया था, मेरे माता पिता सब लोग मेरे से बिछड़ गए हो, मैं भी एक राजकुमारी हूं। राजा ने कहा मैं आपको नहीं ले जा सकता। उसने कहा देखो मुझे शेर खा जाएंगे, आपको इस बात का पाप लगेगा, आप मेरी जान नहीं बचा सकते। राजा ने तरस खा के उसको अपने साथ अपने घर ले आया, महल में ले आया। घर आकर वो रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि देखो आप मुझे घर ले आए हो, मैं भी राजकुमारी हूँ, मुझ में कोई कमी है तो बताओ, मैं अच्छी भली हूँ, मुझसे शादी कर लो। आखिर राजा ने उससे शादी कर ली, क्योंकि मन अंदर से वकील की तरह समझा देता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, आप कर लो ऐसे। शादी के बाद राजा ने कहा देखो एक गरीब आदमी भी शादी करता है। रानी ने कहा कि देखो एक गरीब आदमी भी शादी करता है तो खुशियां मनाता है, हम तो फिर भी राजा रानी है, हमें भी खुशी मनानी चाहिए। खुशी मनाने के लिए
उन्होंने आम लोगों को भोजन करवाया, जिसमें ऋषि मुनि भी जो जंगलों से बुलाए गए थे वो आए। रानी खुद भोजन बांटने लगी। अब ऋषि मुनियों बेचारों ने कभी अच्छा खाना नहीं देखा था, उन्होंने हमेशा जंगलों में से फल फूल जो भी उनको मिलता था वो खा के गुजारा करते रहते। वो बहुत खुश हुए, हंसने लगे कि परमात्मा ने हमें इतना अच्छा खाना दिया है। वो बहुत खुश हुए। ऋषि मुनियों को हंसते देख के रानी ने कहा कि राजा ये देखो, ये तो बदमाश है, ऋषि मुनि थोड़ी ना है, मुझे देख के हंस रहे हैं। राजा को क्रोध आया, उसने सबकी गर्दन काट दी। तभी वेद व्यास जी प्रकट होकर कहने लगे, क्यों राजा, हमने आपको कहा था कि मन बहुत जबरदस्त है, देखो आपकी क्या हालत हो गई है। फिर राजा जन्मेजय को पछतावा हुआ। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि वेद व्यास के बताने पे भी वो मन के दावपेच नहीं समझ सका। उसने यज्ञ किया और गुस्से में आके 18 ऋषि मुनियों को कत्ल कर दिया, जिसके कारण उसे कुष्ठ रोग हुआ और बाद में पछताया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जैसे बाबा जी ने हमेशा कहा है कि मन बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। मन को सिर्फ गुरु ही जीत सकता है, और मन को जीतने का एक ही तरीका है कि उससे भजन अभ्यास में लगाया जाए। इतना आसान नहीं है। गुरु हमें मन की बातों में नहीं आने की प्रेरणा देते, समझाते कि किस तरीके से मन से बचा जा सकता है। हमें उनकी बताई हुई बातों को मानना चाहिए, मन के कहे में नहीं आना चाहिए। मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम बड़ों को रोजाना कहते हैं कि आप स्मरण करें, गुरु करें, भाई को याद करें और अपने गुरु के अनुसार अभ्यास करें। बच्चों से भी यही विनती है कि मैंने हमेशा बच्चों से कहने की कोशिश की है, जो बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि बच्चों के लिए सबसे जरूरी पढ़ाई है। लेकिन बच्चे भी मन का काम मान, मैं थोड़ी देर बात करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, तो हमेशा अक्सर बच्चे टालते रहते हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए कि मन का कहा ना मान के दिल लगा के करें। बाबा जी ने हमेशा बच्चों के लिए बहुत जरूरी प्रेरणा दी है, और बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों को समझाया जाए और प्यार से समझाया जाए। जिस तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ मेहनत करके उनके साथ शब्द गाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रयास है। और बच्चों को भी चाहिए कि वो हर संडे कोशिश करें कि शब्द गाएं, मन के कहे खेलने में ना इधर उधर चले हैं। जरूर जिस तरीके से आज बच्चों ने शब्द गाया, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत खुशी है कि सब बच्चों ने बहुत अच्छा गाया। एक जरूर कहूँगा, कुछ बच्चे मन के कहे अनुसार कैमरा ऑन करने के बाद में आपस में बातें करते रहते हैं, शरारतें करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप याद रखें कि आप बाबा जी के सामने बैठे, संगत के सामने बैठे हैं, और आप बहुत अच्छा बनना, मन का कहा नहीं मानना। सारी बातें मन की ही है, लेकिन हमारे साथ महान गुरु है, प्यारे बाबा जी, जिनकी दया हमारे साथ है। जो कहानी बताई वो ऋषियों मुनियों की है, लेकिन हमारे महान गुरु ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा ठीक करते हैं। वो कभी भी ऐसी कंडीशनें नहीं आने देते, और कभी भी संत अपने सेवकों को ऐसे बता के नहीं बताते हैं। अगर कोई ऐसी बात भी है तो उनको बहुत प्यार से समझा के बहुत हल्के में टाल देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें हर पल हर सांस के साथ अपने गुरु को याद करना है, सिमरन करना है। जब भी वक्त मिले अभ्यास के लिए जरूर बैठना।